Good morning, student. I am Rajendra Singh Mori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mova. Again, welcome to all of you in this online session of this mathematics in class 9th. And last time we discussed about the irrational numbers and some of the examples of the under root 5, under root 3 as well as under root 5.3. Both of the questions we already explained into the last session, and today we will discuss about some of the remaining questions of the practice question 4. So just we have to go for this practice question 4 that is available on your supplementary book. So you open that book and you also studied out that whatever we discussed at the last. So today we discussed more on to the practice question 4. So at least you have to write down all the practice questions those who are not completed in the last session. So, in this first question of your supplementary book, question number 4.1 is that state whether the following numbers are irrational and explain your answer mathematically. So, you have to give the answer of it, or you have to classify only that these all are the numbers are in which category, either it is into the irrational number or rational number. If it is rational number and if it is irrational number, then you have to give into the answer into mathematically, because of that things we discussed at the last. But those who are not completed, again you have to write down this practice question 4 is all are the solution for A, B and C. So first number is 0.890000, means this is a rational because of it is a terminating decimal expansion. मैंने last time भी बात की थी. So it will be considered as a 0.89, so it is a rational. Second one is minus 10.76197619. So 76197619, that is a non-terminating and it is a recurring or repeating. That's why it is known as the rational. So it is not terminating, a recurring decimal expansion, whereas 76919 is being repeated over here, but it's also be considered as a rational because we can say that it's a non-terminating is there. Third thing is considered 0.7329541 is there. So obviously it's irrational because it is non-terminating, non-recurring decimals. Both of the things are there. So we can say that it's obviously it's a irrational number. So that is a question number 4.1 A, B, C. Now we are going for the D. Under root 169, that is obviously rational because the square root of perfect square are the rational. So 169 का स्क्वायर रूट होता है 13. यदि 13 होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है. सो जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट का परफेक्ट स्क्वायर निकलता, ऑब्वियसली उसको हम रेशनल नंबर ही बोलते हैं. अंडर रूट 1, नेक्स्ट वन इज अंडर रूट 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3. सो ऑब्वियसली अंडर रूट 1 और अंडर रूट 13 है, उसमें 1 अंडर रूट 1 का तो 1 हो जाता है, बट अंडर रूट 13 का अंडर रूट नहीं निकलता, रूट नहीं निकलता. सो वी कैन से दैट जब तक अंडर रूट 3 है वो इरेशनल बना रहेगा, तब तक वी कैन से दैट अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 13 बोथ आर द irrational. So E is a irrational number. Similar way we are going for the second one, question 4.2 का. जो फर्स्ट वन हमने लास्ट टाइम आपको मैंने लेक्चर्स में बताया था, दैट इज कंसिडर्ड एज ए अंडर रूट 5. अंडर रूट 5 का मैंने बताया था, और पाइथागोरस का जो इक्वेशन आपको बताया था और आपको कहने को बोला था कि यू हैव टू ट्राइड आउट विद द कंपास एंड रूलर. कंपास और रूलर की हेल्प से यदि आपने बनाया हो, then it will be very good for it, because of this kinds of the similar question I asked here into the practice question 4.1. Now we are going for 4.2 ka A. So that is locate the following irrational numbers on the number line. So we have to using here A is equal to under root 13 is there. So expressing 13 as the sum of two square numbers. तो आपको अंडर रूट 13 कैसे एक्सप्रेस करना है? 13 को एक्सप्रेस करने के लिए हमें 9 प्लस 4 का एडिशन करना पड़ेगा. यदि 9 प्लस 4 कितना होता है? 13 होता है.
9 है वो 3 का स्क्वायर है और 4 है वो 2 का स्क्वायर है। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम we can use that ab square is equal to ac square plus bc square is there, because of we have to put here into the this kinds of the figure. So first you have to write out that figure in your notebook and you have to mention that a to c का distance जो है वो कितना है 3, और 3 और 4 के बीच में हमारा ये अंडर रूट 13 आने वाला है, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। सो 9 और 16 के बीच में हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि 9 और 16 के बीच में 13 आता है ना। So obviously we have to use that the value of under root 13 lies between 3 and 4. So A and B and then we have to using the C. So A B C आप फिगर में देख सकते हो कैसे आपको ड्रॉ करना है। A से C का डिस्टेंस है वो 3 है, 3 यूनिट है, याद रखो 3 यूनिट है। और C से B का मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आपको वर्टिकल लाइन जो दिखाई दे रही है, सॉरी वर्टिकल लाइन जो दिखाई दे रही है वो वर्टिकल लाइन है, उसका यूनिट मेजरमेंट कितना रहेगा 2। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंसिडर कर रहे हैं यहाँ से ए से सी के बीच में वो कितने यूनिट का है 3 यूनिट का है, मतलब 1 2 और 3, 3 से स्टार्ट होता है और सी और बी का डिस्टेंस कितना है 2 है। ये दोनों को जोड़ दो और एक लाइन और खींचो ए और बी के बीच में, जो ऑब्वियसली आपका जो मेजरमेंट दिया गया है वही आंसर आएगा वहाँ पे। सो दैट्स व्हाई इट इज पुटेड लाइक अंडर रूट 13 इज दैट। अब जो आपको करना है वो क्या करना है, ए और बी के बीच में जितना डिस्टेंस ए और बी का है, ये इसकी बात कर रही है, ए और बी का जितना भी डिस्टेंस है इतना आप अपना कंपास का एक लेग मूव करेंगे। एक लेग है वो ए की पोजीशन पे रखेंगे यहाँ पे, और दूसरा लेग जहाँ पे पेंसिल अटैच्ड है आपके कंपास वो बी पॉइंट से बी तक आपने खींच लिया, वहाँ बी से ही आप उसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। अब जो पॉइंट्स बिना हिलाए आपको ये कंपास का यूज़ करना है, याद रखो। और वैसे ही आप जैसे ही नीचे लेंगे ओबियसली एक आर्क बनेगा। ये आर्क जहाँ पे भी टच करेगा वो टचिंग पॉइंट जो है वो आपका नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया गया हुआ इरेशनल नंबर है, वो क्या है अंडर रूट 13। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको करना है। उसके कैलकुलेशंस में मैंने आपको बताया कि इट इज़ कंसिडर एज अंडर रूट 13 इज देयर। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया गया है ए का। तो जिसने भी 4.2 को कंसिडर नहीं किया है अभी तक वो यहाँ से आप लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस ऑल द सॉल्यूशन इन योर फेयर बुक डायरेक्टली। देन आफ्टर वी गो फॉर द सेकंड वन पोर्शन। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेकंड वन जो है 4.2 का B1 वो है अंडर रूट 11। अंडर रूट 11 को भी हम अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि हमने अंडर रूट 13 अभी एक्सप्रेस किया। तो अंडर रूट 13 जैसे एक्सप्रेस किया था वैसे ही अंडर रूट 11 को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी इजी थिंग्स हियर। एक्सप्रेसिंग 11 इज द सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर। अब दो स्क्वायर नंबर का 11 कैसे बनता है, या तो आप अंडर रूट 2 का स्क्वायर करो। अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, ऑब्वियसली अंडर रूट टू मतलब हम क्या करेंगे 2 ही होगा। 2 + 9 कितना होता है 11 हो जाएगा। तो याद रखो कि किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर वो नंबर ही होता है। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल पे दिया है कि अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड विथ अंडर रूट 2 ऐसा हम करेंगे जब भी अंडर रूट 2, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या है वो ही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो अंडर रूट टू क्या होता है इज इक्वल टू 2 ही होता है। सिमिलर वे यदि हम ऐसा करें कि कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लो कि वी आर यूजिंग अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो ऑब्वियसली 3 ही होगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या अंडर रूट वो ही नंबर होता है, जस्ट यू रिमेंबर फॉर दैट। सो हियर कंसिडर दैट अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली वो 2 ही होगा। और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 2 + 9 क्या होगा, ऑब्वियसली 11 होगा। सो दैट्स वे वी हैव टू गो। ओके,
सो कंस्ट्रक्ट अंडर रूट टू कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमें पता है. सो जस्ट वी स्टार्ट लाइक दैट वे. 0 से 1 की पोजीशन हमने डिसाइड की एक यूनिट की. यहाँ पे एक यूनिट है, यहाँ पे भी एक यूनिट है, मतलब हमारा पोर्शन बनता है ए क्यू एंड पी. सो ए क्यू का डिस्टेंस 1 है और पी क्यू का डिस्टेंस भी 1 है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो बनेगा वो अंडर रूट 2 बनेगा यदि ये जोड़ देते हैं हम. तो अंडर रूट 2 बन गया, तो ऑब्वियसली हमें अंडर रूट का मेजरमेंट्स नहीं लेना है, बट हमें अंडर रूट 2 दिखाना है. दूसरी चीज हमें और भी अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया, यानी एक चीज हो गया. अब 3 का स्क्वायर हमें बताना है, तो ऑब्वियसली 3 का स्क्वायर होता है 9. तो हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करें कंपास की हेल्प से, वो देखना है. सो जस्ट वी हैव टू पुट हियर सिमिलर वे कि अंडर रूट 2 तो बन गया एक लाइन. दूसरा हमारा 3 का स्क्वायर बनेगा, मतलब यहाँ से हम एक और लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ, और जहाँ पे भी पॉइंट्स मूव होता है वो हमारा डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 का. क्योंकि हमारा ए से बी का डिस्टेंस है वो अंडर रूट 11 है. तो अंडर रूट 11 कैसे बनता है वो तो हमने यहाँ पाइथागोरस स्क्वायर नंबर्स यूज किया है, इसलिए पता है कि 2 plus 9 is obviously considered as a 11. That's we have to use. So under root 11 lies between 3 and 4. तो अब यहाँ से जितना डिस्टेंस यहाँ पे आपको दिखता है वहाँ से आप आर्क लेंगे तो ये कहाँ पे ये डिस्टेंस मूव होगा, 3 and 4 के बीच. तो ये हो गया आपका अंडर रूट 11 का. So it's a little bit difficult, but it's very easy things. So you have to try it at your home. This is a particular way to representing over here. You can also use your own method, but this method is, I think, very easier. So you can use at your home. Okay. So 4.2 ka B, then we are using the 4.2 का C. That is also be covered like 5.9 जैसे हमने कवर किया था पहले, तो उसी तरह से अंडर रूट 3.9 को भी कवर करना है. सो दैट इज द ऑल द सॉल्यूशन इज गिवन हियर. 4.2 का C, that you have to also write down from here. You can pause the video and all these things with the figure you can write in your Fairbook. फिर में आप लिख सकते हो. So that is very important for you. And next one is considered the 5.1. Now हम 5.1 में जाने से पहले we have to knowing about the questions. We have knowing about the all these things that is very important for the rational real number. So first we have to take the some introduction of the real number, and then after we go for the 5.1. So till this screen 4.1 और 4.2, 4.1 के 4 क्वेश्चन और 4.2 के A, B and C all are very important, because of whenever you take the WRT, the next day is your WRT, you know that. So up to the practice question 4, all the 4.1 and 4.2 up to the C questions, all these things, all the SB9 SB8 पेज में जितनी भी चीज SB1 से लेके SB8 तक जितनी भी कंसेप्ट है, जितनी भी डेफिनेशन है, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, all the practice question will be asked in your WRT. So be careful about it, and you have to clearly read about all the questions up to practice question 4.2. Is it clear? So let us move on to the next point. So let us start with the another one concept, that is a real number, that is available on your supplementary book, that is a concept times 6, that is available on your SB9. आपके SB9 पेज, आपकी सप्लीमेंट्री बुक के SB9 पेज पे नया कंसेप्ट है, कॉन्सेप्ट टाइम्स 6 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन 4. अभी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन 4.1 एंड 4.2 कंप्लीट किया. अभी हम जा रहे हैं कॉन्सेप्ट टाइम्स 6, जो हमारा कंसेप्ट है वो जिसका नाम है रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स किसको बोलते हैं, जस्ट वी हैव टू स्टार्ट, एंड दैट इज वेरी इजी थिंग. First of all, this is the concepts of the real number.
We have a number of times seen that both rational and irrational numbers can be represented on the number line. हमने बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया. नाउ बोथ द नंबर्स टुगेदर फॉर्म द रियल नंबर सिस्टम. अब ये दोनों नंबर यदि कंबाइन हो जाते हैं, टुगेदर हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, that time we can say that it's a one kind of real number system. It means we can say that the combination of rational and irrational number, or we can say that if rational number and irrational numbers are to be gathered, then it becomes one system. That system name is real number system. तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रियल नंबर सिस्टम का मतलब ऐसा होता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों साथ में हो, ऐसी सिस्टम. समझ में आ गया? सो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर टू बी गैदर्ड, इट बिकम्स ए रियल नंबर. So the real numbers is denoted by capital R. I again repeat this sentence that always the real number is denoted by the letter capital R. याद रखो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको कौन से नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है. कई बार ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. हाउ टू डिनोट अवर रियल नंबर्स? ऑलवेज विथ द कैपिटल आर. Is it clear? Next one is that rational numbers having the natural number, whole number, integers and rational numbers all are to be gathered. And the irrational numbers, ये सभी को मिला दो तो क्या हो जाता है? ये दोनों को प्लस कर दो, मतलब आपके पास नेचुरल नंबर है, कोई होल नंबर है, इंटीजर है, वो सभी को मिला के इरेशनल नंबर होता था. उसमें यदि हम इरेशनल नंबर ऐड कर दें तो वो बन जाता है रियल नंबर. सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन represent a unique real number, which is why we call it the real number line. Why we are call it the real number line? Because of each and every numbers, rational हो या irrational, दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं, दोनों एक साथ में हमें रिप्रेजेंट करना है, तभी उसको हम रियल नंबर बोलते हैं. इज इट क्लियर? Now check for the understandings. It's very easy concepts is that's why classify the following as a rational or irrational numbers and give reason for your answer. आप सभी को ये सभी क्वेश्चंस को क्लासिफाई करना है कि आइदर इट इज रेशनल और इरेशनल. सो लेट अस चेक. फर्स्ट नंबर इज दैट 2.501500150001 dot dot dot. So it's obviously irrational number. Why? Because it is a non terminating. ये टर्मिनेट नहीं होने वाला नंबर है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा है. देखो नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स है. सो नो डिजिट और सेट ऑफ डिजिट इज बीइंग रिपीटेड. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली दिस नंबर इज अ इरेशनल नंबर. सेकंड वन 1.24592. आप देख सकते हैं कि 4592 के ऊपर ऐसी एक लाइन है. ये लाइन का मतलब है बार. बार का मतलब होता है कि दैट पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. सो ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग डेसिमल है, मतलब वेयर 4592 सेट ऑफ डिजिट्स इज बीइंग रिपीटेड, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स रेशनल. तो समझ में आ गया क्यों ये इरेशनल है और क्यों ये रेशनल है. थर्ड वन अंडर स्क्वायर रूट. अब आप देखते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 200 ऐसा आपको दिखा है. क्यूब रूट ऑफ 200 ऑब्वियसली इरेशनल बिकॉज 200 इज नॉन परफेक्ट क्यूब. 200 किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं निकाल सकता है, मतलब ये किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं है. एंड क्यूब रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब्स आर ऑलवेज इरेशनल, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज इरेशनल. तो ये सब चीज़ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. जस्ट वी हैव टू चेक फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिस 1, 2 and 3. नाउ द फोर्थ वन इज दैट अंडर रूट 25 डिवाइड बाय अंडर रूट 64. सो ऑब्वियसली
दैट इज ऑल्सो भी कंसिडर। अंडर रूट 25 का रूट निकल सकता है, वो है 5, क्योंकि 5 का obviously 5 is a perfect square here, and under root 64 इसका भी निकलता है तो 5/8। so this is a rational number because of 5 and 8 are the both are the integer। आप देख सकते हैं कि 5/8 में दोनों कैसे नंबर हैं, इंटीजर। so that's why we can say that it's a rational, क्योंकि rational की definition ऐसी थी कि rational number always be put in p by q form, तो p by q form में है ही 5/8। और दूसरी कंडीशन है p and q must be an integer, तो integer भी है। तो इस तरीके से यदि कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स अ रेशनल नंबर। अब आप आगे देखते हैं, अंडर रूट 0.004 that is irrational because is a non-perfect square, and square root of non-perfect square are irrational, that's why it is a irrational number। तो ये 5 चीज़ यहाँ पे आपको बताई, ये पांचों चीज़ के ऊपर हम रियल नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। So now we are going for the practice question 5.1 and 5.2। अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया कि विदाउट शोइंग व्हाट इज़ द रियल नंबर सिस्टम, तो अभी आपको ये पता है कि रियल नंबर सिस्टम है वो दो नंबर का गैदरनेस है। मतलब दो नंबर यदि साथ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम रियल नंबर सिस्टम बोलते हैं। मतलब रेशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो, दोनों को एक साथ में रखो, दैट थिंग्स दैट सिस्टम इज नॉन एज द रियल नंबर सिस्टम। So after learning the well of these concepts, we are going for the practice question 5.1 and 5.2। so let us move on it। so first one is practice question 5.1, that is available on your question on your supplementary book 10। मतलब SB10 पेज के ऊपर आपका नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 है। वो आप साथ में ही वो बुक ओपन कीजिए और उसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 को देखिए। तो उसमें 5.1 आपको दिखाई दे रहा है। 5.1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रियल नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल अलोंग विथ जस्टिफिकेशन। आपको बताना है कि रियल नंबर है, तो रेशनल है या इरेशनल नंबर है वो आपको अलग से बताना है। सो अंडर रूट 4 डिवाइड विथ 2। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ए, अंडर रूट 4 डिवाइड विथ 2, तो ऑब्वियसली रेशनल, बिकॉज आप मान लेते हैं कि अंडर रूट 4 मतलब अंडर रूट 4 का 2 होता है, और 2 का हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, मतलब 2 को 2 ही रखेंगे। सो 2 डिवाइड बाई 2 होगा तो ऑब्वियसली 1:1 होगा रेशियो में, तो 1 ही होगा। 2/2 का मतलब 1 हुआ। सो 1 इज ए रेशनल नंबर, हमें पता है कि 1 इज ए रेशनल नंबर। तो हम 1 रेशनल नंबर आया तो हमारा अंडर रूट 4/2 कैसा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरीके से आपको जस्टिफिकेशन के साथ लिखना है। तो यहाँ पे आंसर सभी के अवेलेबल है। अंडर रूट 4/2 कैसे रेशनल नंबर है, वैसे ही दूसरा 1 प्लस अंडर रूट 7 माइनस 7 प्लस अंडर रूट 7, ये भी रेशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो 1 प्लस अंडर रूट 7 माइनस 7, दोनों ब्रैकेट निकाल दो, तो यदि ये -7 है तो ये माइनस यहाँ पे जाएगा, तो माइनस वहाँ पे प्लस अंडर रूट 7 है तो वो भी कैसा हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 कट हो जाता है, तो 1 में से -7 गया तो बचता है -6। अब -6 है तो वो भी एक रेशनल नंबर है, इसीलिए बी इज अ रेशनल नंबर। समझ में आ गया। वैसे ही सी के ऊपर चलते हैं, -22 डिवाइड बाई 7। अब -22/7 it is in the form of p by q, yes, where p and q are the integer, yes, and q is not equal to 0, yes, that's why -22/7 is a rational number। ओके, ये तो अपनी डेफिनेशन से ही हम सीधा उसका आंसर लिख सकते हैं। वैसे ही 13/11 है, 13/11 ऑल्सो भी इन द फॉर्म ऑफ p by q,
and p and q both are the integers where q is not equal to 0, ये सभी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है. दैट्स वाई 5.1b ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर. तो ये हो गया 5.1 का. ऐसे ही 5.2 को हम कंसीडर कर रहे हैं. क्लासीफाई द फॉलोइंग डेसिमल्स एज रेशनल और इरेशनल अलोंग विथ द जस्टिफिकेशन. सो फर्स्ट वन इज that is 9.0568888 dot dot dot. मतलब इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है. आप देख सकते हो कि नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, बट इट इज रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन where the digit 8 is being repeated. आप देख सकते हो कि वहाँ पे रिकरिंग हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है. कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? 8. 8 digits can be repeated over here, so we can say that it's a rational. क्योंकि condition is that non-terminating recurring decimal expansion is there, then we can say that it's a rational. अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए 1.02002002 डॉट डॉट डॉट, दैट इज इरेशनल बिकॉज इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी है, वेयर द डिजिट आर नॉट बीइंग रिपीटेड. कोई भी डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही. आप देख सकते हो 2 के बाद 00 है, तो फिर 2 तो रिपीट हो रहा है पर उसके बाद वाली डिजिट है वो चेंज हो गई, 3 0 आ रहा है, फिर से 2 आ रहे हैं. तो ये जो अनइवन है, मतलब हम कह नहीं सकते कि पर्टिकुलर प्लेस पे ही ये डिजिट रिपीट हो रही है. यदि डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स इरेशनल. Similar way, we are going for the C 109.8631. That is obviously rational number because it's a terminating decimal. क्योंकि 31 को ख़त्म हो जाता है, 8631 यानी ख़त्म. सो दैट्स ए रेशनल. और ये भी रेशनल होगा क्योंकि इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन वेर द डिजिट 6713. आप देख सकते हैं कि वो ब्लॉक पूरा रिपीट हो रहा है, 6113 6713 6713 6713 so on. So that is a recurring decimal expansion with the non-terminating. That's why it's a rational number. तो ये हुआ आपका फोर्थ वन पोजीशन. अब आप थोड़े ऐसे भी एक्सरसाइजेस है जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 में है. तो 1.2 में जितने भी एक्सरसाइज है वो भी आप अपने फेयर बुक में ही लिखेंगे. सो स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई विथ योर आंसर इज दैट. सो every irrational number is a real number. Justification is that is obviously true. The collection of real numbers contain all the rational and irrational. That's why every irrational is a real number. क्योंकि रियल नंबर है वो रेशनल का भी कलेक्शन है और इरेशनल का भी है, तो इरेशनल सभी इरेशनल रियल नंबर का तो पार्ट होगा ही, तो ऑब्वियसली दैट इज ए ट्रू. Similar way, we are going for the second one. Every point on the number line is in the form of under root m, where m is a natural number. False, because of a number line contains both positive and negative numbers, not only the natural numbers. So the negative numbers cannot be the square root of any natural number. कोई भी नेगेटिव का स्क्वायर रूट कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता. That's why we can say that it's a false. Similar way, that is a third one questions. Every real number is an irrational number. Obviously false, because of a collection of real numbers includes both rational and irrational. So every real number is not a particular irrational number, क्योंकि real number is a combination of rational and irrational number both. That's why it's false. तो ये हुआ आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2. तो आज हमने जो भी एक्सरसाइज कंप्लीट की है, पहले हमने कंप्लीट की प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, ओके. बाद में हमने कंप्लीट की प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 एंड लास्ट में हमने एनसीईआरटी की
अभी 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके, सो फिर से मैं बोल देता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पूरा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, आपके सप्लीमेंट्री में से दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 एंड 5, एंड देन आफ्टर लास्ट वन अभी जो हमने देखा वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये सब चीज़ आपको अपनी फेयरबुक में लिख के आज के होमवर्क में सेंड करना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पूरा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पूरा, and that is from your supplementary book, and one is NCERT exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 में 3 रोमन है, तीनों तीन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इज इट क्लियर? Now I hope that everyone understood these concepts and understood completely your homework, so don't forget to share this particular homework. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture, and I am again saying that your next WRT number 2, the syllabus up to this एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2, मतलब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 तक के, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 के 5.1 5.2 तक, मतलब SB10 पेज, SB1 से लेके SB10 पर पेज फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री बुक, and whatever I explained some NCERT questions during the all the lectures you have to prepare for this WRT. Is it okay? So best luck for that. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you. Thank you very much.